विकास एक सेकंड एक साइड पूजा साइड एक सेकंड रुक जा साइड वाला यार एक मिनट विकास 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 पूजा एक सेकंड एक साइड है विकास 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 बस अब आंखें खराब हो Anuj, partner business. Thank you. Thank you so much. Sir. तू सब नहीं आ रहे हैं ट्रैफिक में। दादा एक फोटो साथ में सॉरी सर। कम पूछ पूजा आप बीच में पूजा जी मिथुन दादा रेडी हो दादा ये So I'm the first one to come. And that's exactly why we are here. Gold awards are individuals belonging to a television fraternity. So with 13 popular, definitely the next big thing. The Gold Awards is not just the first ever television awards show, it's also for the first ever time giving an opportunity to the viewers across the globe to cast their vote to what kind of voting. Wow, just can't get better than that. Few words. So ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Vikas Banerjee right here. Good evening, ladies and gentlemen. Sorry for the long wait. Can I please welcome Mr. Mithun Chakravarti ji? Thank you so much for coming, sir. Can I welcome my colleagues also, Anand Saxena, Pooja, and Ms. Geeta. Thank you so much. Ladies and gentlemen, can I please invite Mr. Mithun Chakravarti to please light the lamp for the Gold Awards? Thank you. चल बैठ जाओ रे मारे ले लो फिर बाद में हम लोग करेंगे मजा मजा कोई मत जाना कैमरा अंकल नीचे दादा अमित ओए यार दादा दादा अपन चलाना पड़ेगा स्टिल से वीडियो बनाने वाले हैं अरे चेहरे ब्लैक दे Friends, Gold Awards is the initiative of Whiteley Entertainment and Target Productions. This is the first television award function to go global. I know exactly how the Gold Awards is and what we conceptualize. And mostly Indians. We've got the Mauritius Tourism Promotion Authority and Mauritius. Swami Vivekananda is the hall where we go to held the awards. Love Plantation is the hospitality partner. Board of Investment is the coordinating partner. These are the Indian partners. Delhi Master for print, Cinemax for multiplex, and outdoor hoarding is sponsored by Lush. We also have a few more Indian partners listed in negotiations with them. It's going to be an annual function. It's going to be held every year, and we're going to blow jobs. We're going to go to different countries every year so that people can vote for their favorite actors in popular categories. London, USA, Australia. We're going
Honorable Jury, Mr. Ravi Chopra, Mr. Mithun Chakrabarti, Ms. Ravi Agnihotri, Mr. Subhash Apte, Ms. Geeta Hari. We've taken people from different walks of life who are not very, they don't know television too much, but we want a fair judgment. We want people who have not seen too much of television but still know about television now. These are the categories. Thank you very much, ladies and gentlemen. I'm honored that I'm one of the juries. First of all, I want to say that it's a great state ahead. I wish the Gold Awards a great success and hope to see more and more events like this happening. Everything is global today, except me though, the first time I will go global now. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. I think Vikas has spoken on my behalf as well. To be very honest, I think this platform of taking the television industry global is something the industry has gone global. And I think it's only fair for us to do the best that we can to take the industry and get it what it deserves. As an actor from television, I've seen the kind of adulation and the kind of fans we have across us and meet us. And if the film industry can take its eternity abroad, I don't see why we in the television industry cannot take our eternity abroad. And it's our attempt, because we has in mind to make this one of the best shows. We hope that from the next year onwards, the industry will more than be happy to be a part of it. हमारे यहाँ पर बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं टेलीविजन की, फिल्म इंडस्ट्री की, लेकिन फिल्म अवार्ड्स अब्रॉड जा चुके हैं टेलीविजन इंडस्ट्री की। टेलीविजन फ्रेटर्निटी को अब्रॉड क्यों नहीं ले रहे हैं अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन इसीलिए बिकॉज मैंने सोचा था कि हम जब ये कंपनी स्टार्ट करेंगे, हमारा एक ड्रीम रहेगा कि हम टेलीविजन इंडस्ट्री को अब्रॉड जरूर लेकर जाएं, उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर जरूर लेकर जाएं। एंड think आपकी सपोर्ट की वजह से, हमारे एक्टर्स की सपोर्ट की वजह से, हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री की सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। Thank you so much. Well, on the encouraging note, Vikas, would you like to say a few words? Already said a lot of words. I would like to welcome Ms. Rakhi Muni. It's been a real high to be on this side of the panel, and I really did awards of the industry, television industry, and I guess they really considered me worthy of it, and it's a real pleasure, and I wish them all the very best. Thank you, ma'am. Right, we move on to the question and answer session. To request members of the press and media to put forward their questions to our dignitaries on the dais. We have our representatives with the mic, so if you would please raise your hand and the mic will come to you. Do we have a question? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि टेलीविज़न आपकी ज़िंदगी में किस तरह से शामिल है? Okay, yes. Well, कैसे मतलब इतने सालों के बाद फिल्म इंडस्ट्री में अगर एक छोटे पर्दे नहीं होते तो हम लोग क्यों मर गए होते? वेटरन्स गिने जाते हैं। लोग इम्पोर्टेंस इतना है कि मैं समझता हूँ कि अभी तक मेरी फिल्म दिखाई जा रही है। And I think it's a great thing for artists. I think it's a great thing for me. Thank you. Any other questions? really कर रहा हूँ जैसे अवार्ड अभी सी बांग्ला में डांस बांग्ला डांस and one of the judges
And those who are staff and Any other question? any other? अरे इधर आओ थोड़ा पीछे हो जाए चलो चलो पीछे शत्रु जी I am the illusion, I am the real. Thank you. सर सर all of you खामोश अभी मैं सजी को फोन किया था सजी का ऑफिस नहीं था बहुत दिन अभी सजी का ऑफिस से आया वो जो हंसे हम लोग बाप I am the illusion, I am the reality. And I request Shatuji to come in also right at the end. So you can do it from here. Yes, you get it because he's just getting it. थोड़ा पीछे आ जाइए थोड़ा पीछे Come here, hold it. पकड़ो Come ना मिठुन दा हाँ मिठुन यशो इधर यशो मिठुन come here अरे come here फिर से जलाएगा रीटेक होगा पीछे लो ना पूरा ग्रुप नहीं मिलेगा पीछे आ जाओ पकड़ो सब चलो कहाँ जाना है इसको दिखाई नहीं पड़ रहा विकास इधर इसको जरा चलो मिथुन दा इधर थोड़ा ये साइड सर इधर चलो हो गया थैंक यू कब खेलते रहो इससे थैंक यू गाइस I have no idea. उधर हाँ थैंक यू बाकी बस खामोश होना ही चाहिए अच्छा इंसान के भाग गया क्या हाँ बैठ जाओ I'm sure वीडियो चक्रवर्ती ये ना सिर्फ मेरे फेवरेट है बट हम सबों के फेवरेट है I call him my favorite boy वीडियो चक्रवर्ती रंजन से मिले ये बॉय लगता है तो बड़ा भी है वीडियो चक्रवर्ती बहुत ही बढ़िया one of the most brilliant actors and I saw his presentation on and presentation that also for the Indian global Indian television board और वो भी is being done by Vikas Karantri. Vikas Karantri is one of the most wonderful, one of the most brilliant, one of the most promising newcomers. Besides, he belongs to a family and very enterprising, very successful family. पिताजी Mr. Karantri, वो हमारे बहुत अच्छे पुराने दोस्त रहे हैं और उन्होंने इस इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स की जो घोषणा की है, जो कल्पना की और कल्पना को साकार करने की कोशिश की उन्होंने मिलकर, जिसमें पूजा का बहुत बड़ा हाथ है और आप तमाम लोगों का इसमें कॉपरेशन है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं कहना चाहूँगा, हालांकि मैं बगैर किसी ब्रीफिंग के बात कर रहा हूँ, मैं आया हूँ और मुझसे कहा गया है आजकल ज्यादातर जो अवार्ड्स हो रहे हैं, अवार्ड्स तो बहुत ज्यादा हैं, जिससे कई लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि ये अवार्ड
अवार्ड क्या है, ये फैमिली पैकेज का अवार्ड तो नहीं है। ये अवार्ड अंग्रेजी में गॉट है या अंग्रेजी का बॉट है, ऐसा भी हो रहा है। आज मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स इंक्लूडिंग द नेशनल अवार्ड आज पूरी कंट्रोवर्सी है। इसलिए जरूरी है उस वक्त ऐसे अवार्ड्स को लेकर सामने आना, और खासकर टेलीविजन चैनल जो सबसे सशक्त माध्यम है टेलीविजन, यानी टेलीविजन इसका मुख्य उद्देश्य है एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, और तीनों में जो काम टेलीविजन माध्यम से हो सकता है, टेलीविजन चैनल जो कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कोई भी माध्यम उसे पकड़ सकता है और कोई माध्यम उसके कहीं आसपास भी आ सकता है। तो एक तरफ तो हम इसकी बहुत सराहना करते हैं, दूसरी तरफ चाहते हैं कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई जरूर हो। जो मुझे बताया गया है कि ऐसे लोगों की खासकर हौसला अफजाई के लिए और ऐसे लोगों के अवार्ड्स में विश्वसनीयता पैदा करने के लिए कुछ अच्छे लोग, कुछ बढ़िया लोग, ताकि लोगों का कंफ्यूजन खत्म हो, प्रतिस्पर्धा या ग्लोबल कंपटीशन के दौर में वो कंफ्यूजन खत्म हो और विश्वसनीयता पैदा हो, बिलीव करें लोग। उसके लिए बहुत अच्छा ग्रुप विकास, कलंत्री, पिताजी, पूजा, अनुज और मिठू चक्रवर्ती, हमारे सब लोग मिलकर, आपको मिलकर एक बढ़िया इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल ग्रुप का सामने आना, और इंटेलेक्चुअल और प्रोफेशनल ग्रुप का लेकर सामने आकर एक प्रोफेशनल तरीके से एक बढ़िया प्रोफेशनल पीस सामने पेश करना, और वो भी पहली बार इस तरह के अवार्ड्स को मॉरिशस में पेश करना, ना सिर्फ फिल्मों के लिए और टेलीविजन के लिए बहुत नायाब कदम होगा, ना सिर्फ फिल्मों और खासकर टेलीविजन की विश्वसनीयता के लिए बहुत जबरदस्त उठा हुआ पहला कदम होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि चाइनीज में कहावत है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स मस्ट बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। हजारों मील लंबी यात्रा की शुरुआत पहले उठे हुए बड़े कदम से होती है। आज मैं देख रहा हूँ कि विकास, अनुज, पूजा और आप तमाम लोग मिलकर, हमारा छोटा भाई मिठू ने मिलकर एक बहुत जबरदस्त कदम उठाया है, न सिर्फ फिल्मों के विकास और टेलीविजन के विकास के लिए, उनके अवार्ड्स के लिए, बल्कि मैत्री के लिए भी दो मुल्कों में रिश्ता मजबूत करने के लिए, हिंदुस्तान और मॉरिशस में ये और मजबूत करने के लिए मैं समझता हूँ ना इसे बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है, बल्कि तमाम लोग, खासकर विकास, पूजा, अनुज और उनके पिता, हमारे दोस्त कलंत्री, बहुत बहुत बधाई के काबिल हैं। और इस दौरान, इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्रिएटिव, रचनात्मक, सृजनात्मक, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव काम के जरिए, तो मैं अपने आप को आज आपके सामने इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स, ग्लोबल इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स में अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ, पेश करता हूँ, इस कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना के साथ कि बहुत कामयाब हो, इसकी चमक दूर दूर तक जाए, दूर दूर तक दोस्तों के बीच में, मुल्कों के बीच में गहरा रिश्ता पैदा करे, और फिल्म्स और खासकर टेलीविजन के तमाम जो कार्यक्रम होते हैं, नई शान, नई ग्लोरी तक पहुंचे, उनकी शान बढ़े, उनकी शीन बढ़े, ग्लोबल इंडियन टेलीविजन प्रोग्राम्स के जरिए, अवार्ड्स के जरिए। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, and I also invite Vikas Kalantri to say a few words. Before that, I would like to thank all of you over here, including the media. What a wonderful media, friends from media, they are right over here, that come over here. I'm grateful indeed, and I say on behalf of Vikas, Anuj, and Indian Television Global Awards, that they need and deserve your support and guidance. Thank you very much. मैं समझता हूँ आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ ना सिर्फ कमियों को, खामियों को दूर किया जाएगा, बल्कि मुझे लगता है जब ये अवार्ड्स आपके सामने आएंगे और थोड़ा और परिपक्व हो,
और थोड़ी मैच्योरिटी के साथ सामने आएंगे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे किसको मिलेगा। सर मैं भी इसमें कुछ कहना चाहूँगा। जैसे सर जी ने कहा ये अवार्ड्स जो है फेयर अवार्ड्स होंगे। हम ये नहीं देखते कौन है। हमारे लिए ग्लोबल इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स सबके लिए एक है, चाहे वो एकता कपूर हो, चाहे अनुज सक्सेना हो, चाहे विकास गलती हो, चाहे कोई और। हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे डालेंगे और सबको उसी तरह अवार्ड्स देंगे अगर वो डिजर्विंग हो। You want to take these awards to a global level, but do you think that the content of Indian television today is global at all? I think you'll be surprised to know that we were in Mauritius. These two series, Kyuki and Sindoor, it starts from 6 o'clock and it ends at around 7 o'clock. From 6 o'clock to 7 o'clock, there's no one. I mean, we still pick up phone calls and we still talk to people. They are glued to the TV. Trust me, I was with this Russian journalist. She had come to interview and she was like, she adored every serial shown in India, which was shown in Russia in their regional language. Because they feel that it's not only the language, they come with subtitles and they just enjoy the Indian culture. They are very... I would like to there be some elimination or selection by the jury. हमारे जो पॉपुलर अवार्ड्स है वो आम जनता से हमारी टेलीविजन फ्रेटर्निटी वो चूज करेगी और जो जूरी अवार्ड्स है वो सिर्फ जूरी चूज करेगी। So will be given the award or will there be some? Alright, thank you so much members of the press and media. बस क्या विरल पूजा अभी पूजा थोड़ा अरे यार मुझे तो कुछ दिख ही नहीं थोड़ा और थोड़ा इधर अरे मैं कभी ना करता हूँ वो तो मेरे साथ था रजत कल मेरे साथ ही था आपने भाई 2 मिनट सर 2 मिनट बोल के जाइए किस मामले में नहीं बोल रहा सर टीवी के मामले में क्या शत्रुघ्न जी आपका इंडिया टीवी पे स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो ये बताइए आजकल के अवार्ड सेरेमनी को आप कितना जायज़ और सही मानते हैं? नहीं देखिए एक बात तो है जैसे मैंने कहा अवार्ड्स के मामले में चाहे कोई भी अवार्ड हो आज मैं समझता हूँ ज़्यादातर अवार्ड तो बिल्कुल कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए और घिरे हुए हैं। मैं तो समझता हूँ शायद कोई भी अवार्ड ऐसा नहीं है आज के दिन में जिसके बारे में कुछ तरह तरह की अजीब अजीब बातें नहीं होती। कई अवार्ड्स लगता है जैसे कि कुछ ख़ास लोगों के लिए किया जाता है, कई अवार्ड्स कुछ ख़ास लोगों को दिया जाता है, कई अवार्ड्स ऐसा लगता है ये फैमिली पैकेज बनाकर पेश किया जा रहा है, कई अवार्ड्स में ऐसा लगता है जो उस अवार्ड्स के टाइम में पहुंच गए उनको दिया जाता है। कुछ अवार्ड्स में किसी से डांस करने में अगर उन्हें परफॉर्म करना है और डांस करवाना है कलाकारों से अगर उनकी प्राइस में कुछ मोल तोल या कमी पेशी करनी है तो एक अवार्ड दे के पूरा कर दिया जाता है। ऐसा भी लगता है और ऐसा होता है और ऐसा भी दिखता है सबों को। इसलिए ज़रूरत है आज अवार्ड्स के इंडियन टेलीविज़न और इंडियन ग्लोबल टेलीविज़न अवार्ड्स का ये मुख्य मकसद जो है मैं समझता हूँ और होना भी चाहिए वो है विश्वसनीयता पैदा करना। क्योंकि आज लोग कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, ये समझ नहीं रहे हैं कि कौन सा अवार्ड वाकई सही मिल रहा है, कौन सा अवार्ड बॉट है और कौन सा अवार्ड गॉट है, कौन सा अवार्ड फ्री में मिल रहा है और कौन सा अवार्ड पैसा देकर मिल रहा है या पैसा देकर ख़रीदा जा रहा है। ऐसा भी होता है, मैं किसी ख़ास अवार्ड का नाम नहीं ले रहा हूँ। इसलिए अब वक्त है
कि इसमें विश्वसनीयता पैदा हो। आज देखिए नेशनल अवार्ड को भी कोई छोड़ नहीं रहा है। नेशनल अवार्ड के बारे में भी तरह तरह की बातें हो रही हैं, अलग अलग ग्रुप पैदा हो जाते हैं वहाँ पे, अलग अलग लॉबिंग होती है अवार्ड्स वालों की, अवार्ड दिलवाने वालों की, पॉलिटिशियंस की, कि ब्यूरोक्रेट्स की, या जिनका अपना अवार्ड्स है उनके अपने अपने कारण होते हैं, अपने अपने चहेते होते हैं, अपने अपने मनपसंद होते हैं। इसलिए सही होगा कि ऐसा अवार्ड हो जो एक तरफ टेलीविज़न और फिल्म्स को बुलंदियों तक ले जाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा है अहम सवाल ये कि वो उनके अंदर विश्वसनीयता कितनी पैदा होती है, बिलीवेबिलिटी कितना है, कितना लोग यकीन करते हैं। मैं समझता हूँ उसी विश्वसनीयता, उसी यकीन करने की प्रोसेस में, जो कि विकास कलंतरी बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही बढ़िया है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इसके फैमिली का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और अनुज उनके जो मित्र हैं, ये लोग प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनली सामने आए हैं, कई बातों को आपके सामने रख रहे हैं, और कई बातों की जानकारी अभी मुझे हासिल करनी है कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ बगैर किसी ब्रीफिंग के। मैं आया हूँ और आपने मुझसे पूछा, चूँकि आपसे मीडिया से हमारे संबंध गहरे हैं और अच्छे हैं, उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ जिस तरह से टेलीविज़न का ख़ासकर मुख्य मकसद क्या है, वो है एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन। अब इनको तो आप ले जाएंगे बुलंदियों तक। इस को जो विकास कलंतरी कर रहे हैं, अनुज कर रहे हैं, एक ग्लोबल इंडियन टेलीविज़न अवार्ड इस बार मॉरिशस में करेंगे, तो मॉरिशस भी ले जाएंगे अगले साल, और नए नए मुल्कों में उससे आप दोस्ती भी मजबूत करेंगे, रिश्तों में भी गहराई लाएंगे, एक दूसरे मुल्क को एक दूसरे के साथ करीब करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और होनी चाहिए कि इसमें विश्वास पैदा करें, विश्वास, और विश्वास जितने पैदा कर लेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस अवार्ड्स के, ग्लोबल इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स के मुकाबले में शायद कोई और अवार्ड सामने आ सके। शत्रुघ्न जी, आपको ये लगता है हमारे लिए बड़ा ही सोचनीय है हमारे समाज के लिए और देश के लिए कि जैसे भारत रत्न अवार्ड है या अर्जुन अवार्ड है, उन तक पे आजकल सवाल उठने लगे हैं? ये सोचनीय नहीं, मैं तो समझता हूँ कई बार बहुत ही दयनीय स्थिति है। सोचनी नहीं, दयनीय स्थिति है। कैसे कैसे अवार्ड्स मिल रहे हैं, किन किन लोगों को दिया जा रहा है, किन किन कारणों से दिया जा रहा है। यहाँ तो कई बार ऐसा लगता है, पूर्ण सम्मान के साथ कह रहा हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे भारत रत्न की या बाकी कई अवार्ड्स की लगता है दुकान खुल गई है, कि अब तो लगता है कुछ अवार्ड से औरंगजेब को और अकबर को इन्हीं को देना बाकी रह गया, बाकी तो सबको मिल ही चुका है। मैंने ऐसा लगता है कुछ कारण अगर किसको यहाँ दिया जाता है गीत संगीत के नाम पे, तो दूसरे और गीत संगीत के बहुत महारथी उनको क्यों नहीं दिया जाता। किसी को दिया जाता समाज सेवा के नाम पे, तो बाबा आमटे को क्यों नहीं दिया जाता। चाहे हमारे महाराष्ट्र में वो दूसरे जो बहुत बड़े क्रूसेडर हैं, क्या नाम उनका, जो भी अन्ना हजारे को, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इतने लोगों को दिया गया। ज़रा पूछ सकता हूँ जयप्रकाश नारायण जी को क्यों नहीं दिया गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो एक पार्टी की इस पे जागीर नहीं होनी चाहिए, ऐसा हो रहा है। मैं कहता हूँ चाहे तो राष्ट्रीय अवार्ड्स की बात करें या नेशनल अवार्ड्स की बात करें, वहाँ पे कई बार लॉबिंग हो जाती है कि आज इस पर ये कारण हुआ कि अच्छा पिछली बार आपने साउथ इंडिया को दिया था, तो इस बार नॉर्थ इंडिया को दीजिए। जैसे अभी आप देखते हैं किसी राष्ट्रपति पद या किसी पद पे भी एक प्रदेश की छाप लगा के कुछ लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं कि फलाना आदमी मराठी मानुस है या मराठी है तो उसको मिलना चाहिए। तो पिछली बार भी तो सुशील कुमार शिंदे मराठी मानुस थे, वो भी हमारे महाराष्ट्रियन थे, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो फिर सुशील कुमार शिंदे के लिए वही मापदंड क्यों नहीं अपनाया गया, उनको उस वक्त क्यों नहीं वोट दिया गया। तो ये तरह तरह की बातें हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए मैंने अपना मुख्य शीर्षक रखा है, मुख्य टाइटल रखा है आज की बातचीत का, विश्वास और विश्वसनीयता। विश्वसनीयता आनी चाहिए, वरना बहुत कंफ्यूजन है और बहुत कंट्रोवर्सी। क्या आप सहमत हैं राष्ट्रपति पद से जो सेलेक्ट हुई हैं, जो चुनी गई हैं? शत्रुघ्न जी, अगर कभी आपको, हमेशा जूरी में हूँ, जूरी की हैसियत से तो हर जगह बात करता हूँ। मैं देख रहा हूँ देश में क्या क्या हो रहा है। अब तो सर जूरी के लिए बता के जाइए, क्या आप सहमत हैं उससे कि आप कभी आप जूरी में? नहीं, जूरी जरूर होना चाहिए, चाहे कहीं भी हो, किसी भी अवार्ड में हो, लेकिन फिर वही जूरी की विश्वसनीयता होनी चाहिए, किसी ग्रुप का नहीं होना चाहिए जूरी। और जूरी का सजेशन जो है, मैं समझता हूँ वो बाइंडिंग होना चाहिए। यानी अगर जूरी का सजेशन हो वो बाइंडिंग होना चाहिए, यानी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए जूरी को। अच्छा। और जूरी जैसे आप जस्टिस सिस्टम है वैसे, लेकिन अगर उसमें मिलावट आती है तो फिर गिरावट आ जाएगी। गिरावट आ जाएगी पूरे प्रोजेक्ट में।
इसलिए मैं समझता हूँ यहाँ ऐसी बात नहीं है कि मैं विकास कलंतरी का और उसके पिता का बहुत ही आदर करता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं इनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आपने मिथुन जी को बॉय कहा, क्या खूबियाँ लगी? नहीं मिठुन बहुत, मिठुन मेरा बहुत प्यारा, बहुत हमारा ही क्या पूरे फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्यारा बॉय है। मैं मिठुन को हमेशा उसी दृष्टि से कहता हूँ। मिठुन और गोविंदा ये लोग बहुत प्यारे लड़के हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। हालांकि मिठुन शायद हमारी उम्र का होगा, लेकिन इतना इज्जत करता है, इतना प्यारा स्वभाव, इतना न्यारा स्वभाव है। और गोविंदा भी, ऐसे लोग आजकल के ज़माने में बहुत कम दिखते हैं जैसे मिठुन है और गोविंदा है। इसलिए मैं बहुत प्यार से कहता हूँ दे आर माई फेवरेट बॉयज़। आप कब वापस से टीवी पे कब वापस आने वाले हैं? इसे कहते हैं, इसीलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहा था, मैं जानता हूँ।